Hello students, so welcome to my class Physics. Today's topic is total internal reflection and its application. Now look at this figure. Yes, light passes from denser medium to rarer medium. Let us suppose point O it is in denser medium and light emerges from point O. One which is directly outward, that means normal incidence, angle of incidence 0. It passes from denser to rarer medium without any reflection of light, without any deviations. But all other rays, when the light passes from denser to rarer medium, the angle of reflection always more than the angle of incidence. And gradually when angle of incidence increases, angle of reflection increases. At a particular angle of incidence within the denser medium, the angle of reflection that will be 90 degree. And what will happen beyond that? And during this process also, some amount of light reflect back. Here also some amount of light reflect back. But when the angle of incidence is more than this angle, what will happen? Then the light totally reflect back. Totally means 100% light reflect back at that time. There will be no transmission. Therefore, this phenomena is known as the total internal reflection. इसमें जो हम देख रहा हूँ water to air जा रहा है. Water is the denser medium, then the air. तो इस टाइम ऐसा केस होता है 100% लाइट रिफ्लेक्ट बैक होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस. दिस एंगल फॉर व्हिच angle of incidence, this angle of incidence for which the angle of reflection is 90 degree, this angle of incidence is known as the critical angle of this pair of media, because at this case the light is in now critical stage, and if we increase very small amount of angle, that is 0.0001 degree also, then it will return back in the same medium. The angle of incidence in the denser medium for which the angle of reflection in the rarer medium is 90 degree is called critical angle of the denser medium and is denoted by IC or simply C. In some cases you also observe it is in place of IC, that will be denoted by the C. Now total internal reflection. What is the total internal reflection? जो आप हम लोग देखें ऊपर में जो फैक्ट है उसी को हम लोग अगर लैंग्वेज में लिखते हैं, so that will be the definition of the total internal reflection. The phenomenon in which a ray of light traveling at an angle of incidence greater than the critical angle from denser to rarer medium is totally reflected back into the denser medium is called total internal reflection. मतलब internally reflect हो जा रहा है, 100% light reflect back हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको total internal reflection. Necessary conditions for total internal reflections क्या है? Number 1, light must travel from optically denser to an optically rarer medium. मतलब ये फर्स्ट कंडीशन है, जो डेंसर टू रेयर जाना ही है, क्योंकि नहीं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट विल बी नॉट ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको एक सिचुएशन मिलेगा. नंबर 2, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ टू मीडिया. तो क्रिटिकल एंगल जो हम बात किए हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए और डेंसर टू रेयर मीडियम जाना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल एंगल मिलता ही इन दिस सिचुएशन में व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. अभी जो क्रिटिकल एंगल दो मीडिया का बीच में जो क्रिटिकल एंगल की हम बात अभी कर रहा हूँ, तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम, उसके ऊपर डिपेंडेंट है. हाउ इज इट डिपेंडेंट हम लोग देख लेंगे. हम लोग जानते हैं फ्रॉम द स्नेल्स लॉ sin I by sin r is equal to 2 mu 1. 2 mu 1 in this example, that is W mu A, because light passes from the water to air. Polarized reflective index, that will be for the second medium with respect to first medium. In this case, first medium is the air and second medium water and second medium is the air. तो हम लोग इसको लिखते हैं. और इसके बाद हम लोग एक चीज जानते हैं जो 2 mu 1 which is equal to 1 divided by 1 mu 2.
तो हम लोग इसको लिखेंगे 1 डिवाइड बाई ए म्यू डब्ल्यू, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर. When I is equal to IC, that means angle of incidence is equal to angle of critical angle, then angle of reflection 90 degree. Therefore, sin IC divided by sin 90 degree. In this case, if we put this I in place of I, that is IC, and in case of the R, that is the 90 degree, then it will be sine of IC by sin 90 is the 1 divided by 1 mu 2. 1 mu 2, that is the reflective index of the denser medium with respect to the rarer medium. Here mu1 is the reflective index of the error medium. So हम लोग लिखेंगे तो 1 mu2 that will be, it is the 1, therefore 1 divided by sin of IC. For sin of IC you can write that is the IC is equal to sin inverse 1 by 1 mu2. If the greater rarer medium is the air, then you can say mu1 is the 1. Then we can write this mu1 is the 1, so mu2 is the mu, say mu is the reflective index of denser medium. Then reflective index of the denser medium mu is equal to 1 divided by sin of IC. तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम. तो क्या है ना, mu is equal to 1 divided by sin of IC inversely proportional to the sin of angle of critical angle. Thus, the reflective index of any medium is equal to the reciprocal of sin of its critical angles. मतलब जो critical angle है उसका हम sin लेंगे, उसका reciprocal लेंगे, तो उसको हम लोग mu बोलते हैं. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स mu एंड क्रिटिकल एंगल फॉर द सम मीडियम, अभी थोड़ा सा स्टडी कर लिया जाए. डिफरेंट जो एक्चुअल मीडियम है, जो ऑप्टिकल मीडियम, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं, तो क्रिटिकल एंगल हम निकाल कर रख सकता हूँ पहले से, क्योंकि साइन इनवर्स 1 बाई म्यू होगा. तो इसका वैल्यू हम लोग देखेंगे. आईसी के लिए होता है म्यू का वैल्यू 1.31 एंड क्रिटिकल एंगल इफ वी पुट द वैल्यू हियर इन दिस, तो यहाँ पर इक्वेशन में, तो आईसी कितना था, साइन इनवर्स 1 बाई म्यू होता है, तो उसी हिसाब से हम लोग निकालते हैं, तो 49.76 डिग्री. वाटर दैट इज 1.33 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स and critical angle water 48.75 degree. Alcohol, that is 1.36, the critical angle is 47.33 degree. Turpentine oil 1.47 and 42.87 degree. Crown glass 1.52, that is 41.14 degree. Flint glass 1.65, उसका critical angle होता है 37.3 डिग्री. सबसे ज्यादा आपका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डायमंड के लिए होता है, दैट इज द 2.42 एंड द क्रिटिकल एंगल इज 24.4 डिग्री, दैट इज लेस देन 25 डिग्री. इसमें और एक बात ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे टर्पेंटाइन ऑयल एंड वाटर, इट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल इज द लेस देन द वाटर. मतलब इसका जो रिलेटिव डेंसिटी होता है, तो एक्चुअल जो मास डेंसिटी होता है वाटर से कम है, हल्का है, लेकिन इसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है. तो मतलब हम लोग को एक चीज ख्याल रखना होगा, जो हम डेंसिटी बोलते हैं और ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, these two are not same. Density means mass density means mass per unit volume, but optical density इसका मीनिंग हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. जो मीडियम में जाकर स्पीड लाइट जितना कम हो जाएगा, हम लोग वो ज्यादा डेंसर मीडियम है. तो उस हिसाब से टर्पेंटाइन ऑयल इज डेंसर मीडियम एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. तो इसमें जितना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होते जा रहा है, इतना हम देख रहे हैं क्रिटिकल एंगल डिक्रीज होते जा रहा है. इसका यूज हम लोग करते हैं इन आवर डेली लाइफ. देखेंगे यूज क्या है, एक दो यूज हम लोग आज देखेंगे. और उसके बाद अब हम इसमें जो चेंज होता है ना, दूसरा मीडियम में जाता है, तो वेवलेंथ चेंज होता है. ये पे लैम्डा नॉट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड लैम्डा एम इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम. मतलब लैम्डा एम कोई दूसरा मीडियम है, वेवलेंथ हो गया है, लैम्डा नॉट हो गया, वैक्यूम में हुआ है. तो ए म्यू भी कितना होना, दैट इज म्यू नॉट बाय म्यू एम. म्यू लैम्डा मींस sorry, the lambda mu ab means reflective index of the b with respect to a, that is the mu हम जिसको बता रहा हूँ. तो इसमें क्या लिखेंगे ना, wavelength in vacuum divided by wavelength in that medium. तो sin of IC कितना होगा ना, 1 by mu, that is the lambda am, मतलब in medium divided by lambda naught. That means in terms of lambda wavelength we can also find out the angle of critical angle. इसको हम लोग निकाल सकता हूँ. एक म्यू को वैल्यू हम लोग जानते हैं, जो एआर में सबसे बड़ा होता है वेवलेंथ, कोई भी वेव का, दूसरा मीडियम में कम हो जाता है, दोनों का रेशियो होता है म्यू. तो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन आल्सो
write the value of mu, तो sin of IC हो गया wavelength of that light in that medium, जो medium हम critical angle consider कर रहा हूँ denser medium का divided by wavelength of this, wavelength of the same wave in the vacuum or air. एक कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं. Example, calculate the minimum angle of incidence so that a ray of traveling from glass to water does not emerge out in water. Does not emerge out in water. तो इसमें that means when light passes from glass to water, then what will be the critical angle with respect to the water? तो कितना होगा ना, इसमें g mu a that is 2/3 and a mu g is 3/2. That means with respect to air, actually that is the absolute refractive index of the glass is the 3/2, and with respect to air, absolute refractive index of water is the 4/3. तो W में G कितना होगा, मतलब डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यहाँ ग्लास इज द डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज द म्यू G by म्यू W होगा. So that is the mu G divided by mu W. So these two values are given here. So 3/2 divided by 4/3, that is 9/8, that is 1.125. तो इसमें क्रिटिकल एंगल कितना होगा हम निकाल सकता हूँ, तो इसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो 8/9 हो जाएगा, दैट इज 0.08888. उसका साइन इनवर्स निकालते हैं तो 62.7 डिग्री. जब वही ग्लास जो था, वही ग्लास का अबाउट 42 डिग्री था जब हम सराउंडिंग में एयर लिए थे. दैट मीन्स critical angle that depends upon the surrounding medium, not only that but not only that medium, जो denser medium उसको ऊपर only dependent नहीं है. वही ग्लास जिसका critical angle हम पहले देखे थे 42 से भी कम डिग्री था इसमें, तो 42 का आसपास मान लीजिए था, वो हो गया है आपका जो वाटर में डाल देंगे तो क्रिटिकल एंगल वही ग्लास टू वाटर के लिए हो जाएगा 42.7 डिग्री. इसका जो एक यूज, दो यूज हम लोग पढ़ेंगे. सबसे ज्यादा यूज अभी हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर में. The working of optical fiber is based on the phenomenon of total internal reflections. ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसमें एक ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है ना, कि हेयर थिन लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्ज हम लोग यूज करते हैं, सराउंडेड बाय ए ग्लास कोटिंग ऑफ स्लाइटली लोअर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. It is used as a guided medium for transmitting an optical signal from one place to another place. तो इसका जो कंस्ट्रक्शन बेसिक ऐसा है, अंदर में कोर होता है जो हम हाई क्वालिटी ग्लास है क्वार्ट्ज हम लोग यूज करते हैं. नेक्स्ट उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेटर सपोज μ1, तो μ1 अनदर उसका बाहर में एक कोटिंग होता है दैट इज आल्सो ऑप्टिकल मीडियम, बट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज द μ2 दैट इज स्लाइटली लेस देन द μ1. μ1 से μ2 का वैल्यू कम होता है, मतलब ये हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, उसका सराउंडिंग में अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग, बोलते हैं इसको बोलते हैं क्लैडिंग. और उसको ऊपर बाहर में हम जो डिफरेंट कलरफुल देखते हैं, तो एक बाफर कोटिंग रहता है प्लास्टिक का और पीवीसी, तो कोटिंग बाहर में रहता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका स्ट्रेंथ देने के लिए. प्रैक्टिकली इसका डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट रोल हो गया कोर एंड क्लैडिंग, ये दोनों का. तो ऑलवेज कोर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है क्लैडिंग से ज्यादा होता है. तो उसका कंस्ट्रक्शन तो यही हो गया. एन ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स. कोर हो गया, द सेंट्रल सिलिंड्रिकल कोर इज मेड ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास और सिलिका और प्लास्टिक, मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होना चाहिए of the reflective index μ1 and has a diameter about 10 to 100 micrometer, मतलब microns, very thin hair like. उसके बाद उसका बाहर में क्या होता है ना, एक कोटिंग रहता है जिसका नाम है क्लैडिंग. द कोर इज सराउंडेड बाय ए ग्लास और प्लास्टिक जैकेट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. हियर μ2 लेस देन μ1, पहले हम बात कर चुके हैं. जो सराउंडिंग जो है क्लैडिंग का, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस होता है. इन ए टिपिकल ऑप्टिकल फाइबर the reflective index of core and cladding may be 1.52 and बाहर में जो cladding होता है 1.48, बहुत ही आसपास है लेकिन कम होना ही चाहिए. बफर कोटिंग हो गया for providing a safety and strength. The core cladding of optical fiber is employed in a plastic jacket. बाहर में एक प्लास्टिक जैकेट होता है, तो उसको स्ट्रेंथ देते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, लॉन्जिविटी भी बढ़ाते हैं. इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, एक इनडायरेक्ट रोल है इसमें बाहर जस्ट. तो इसके बाद कैसे लाइट आगे बढ़ते हैं थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर. तो ऑप्टिकल फाइबर, इसमें प्रोपगेशन ऑफ लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर. द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन फेनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन.
ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर ही बेस किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर एक लाइट जब एंटर होता है तो अब आफ्टर फास्ट रिफ्लेक्शन देन व्हेन इट इंसिडेंट ऑन द कोर एंड क्लैडिंग इंटरफेस, तो इसमें क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस वे इसके एंटर किया जाता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, then it will reflect back and again reflect back, and after several reflection it will proceed in forward directions. The light incident on one end of the fiber at a small angle enters the fiber. Small angle क्यों ना, ज्यादा एंगल होने से वहां पर जो फास्ट इंसिडेंस में एंगल क्रिटिकल एंगल यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से कम नहीं होना चाहिए, तो इसमें जो एंगल है ना पूरी डायरेक्ट यहाँ पर डाला जाता है, चाहे बहुत ही कम एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा जाता है यहाँ पर, such that this angle of incidence at the core and clad interface angle of incidence that should be always greater than the critical angle, otherwise सिग्नल यहाँ लॉस हो जाएगा, सिग्नल आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक है, तो उसमें हम लोग डिटेल नहीं जा रहा हूँ, उसमें एक एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस कैलकुलेट किया जाता है जो इसका अंदर में ही, जैसे 10 डिग्री एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस मान लीजिए किया जाता है, तो 10 डिग्री का अंदर में फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो जहाँ लाइट एंटर कर रहा है इंटरफेस में वो होना चाहिए। इसमें हम लोग इतना डिटेल नहीं जा रहा हूँ, एक बेसिक एलिमेंट्री आइडिया हम लोग लेंगे यहाँ पर। तो कोर एंड क्लैडिंग द इंटरफेस एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, क्योंकि इसीलिए स्मॉल एंगल होना चाहिए, एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द कोर। Light thus travels inside the optical fiber along a zigzag path as shown in the figure। ऊपर में हम लोग देखें मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स होते होते अंदर में चलते जाएगा, as it finally comes out of the fiber at the other end, even if the fiber is bent or twisted, and there is almost no loss of light to the sides of the fiber or due to absorption by the core। इसमें हम लोग जो सिग्नल जो जाता है ऑप्टिकल सिग्नल, तो ऑप्टिकल सिग्नल का स्ट्रेंथ अच्छा रहता है, मतलब मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें मिनिमम लॉस होता है, आपको सही इंटेंसिटी में आउटपुट हमको मिल जाता है ऑन द अदर एंड। एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर भी यूज किया जा सकता है, लेकिन बहुत जगह पर जो हुआ वहां पर हम लोग बंडल लेते हैं, एक बंडल ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड द लाइट पाइप बोलते हैं। ए लाइट पाइप कैन बी यूज टू ट्रांसमिट एन इमेज accurately, so it is used in medical and optical examinations, that is in endoscopy etc। एक सिंगल अगर ऑप्टिकल फाइबर से एक लाइट का एक डॉट जाता है तो उसमें बहुत सारे डॉट दे करके हम इमेज बना सकता हूँ, तो उसके लिए एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर से ऐसा इमेज नहीं, डॉट डॉट ही मिलता है लाइट का, तो मतलब टोटल इमेज एक फुल इमेज हम लोग देखने चाहते हैं, तो इसलिए एक बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर हम यूज करते हैं, तो उसको हम ऑप्टिकल पाइप बोलते हैं। एप्लीकेशंस थोड़ा देख लीजिए क्या क्या एप्लीकेशंस है ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन टेलीकम्युनिकेशंस। एट प्रेजेंट आप लोग देखोगे चारों तरफ फाइबर्स ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल केबल फाइबर, ये अंडरग्राउंड फाइबर आप देखते रहो, तो उसमें वो जो है ना एक्चुअली इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसमें जाता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो ऐसा नहीं होता है, पहले ऑप्टिकल सिग्नल जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं जा सकता है, क्योंकि इट इज वन नॉन इलेक्ट्रिकल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं जाएगा। पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो सर्किट में होता है जो मैसेज सिग्नल, तो उसको पहले विद द हेल्प ऑफ एलईडी, तो उसको चाहे अनदर ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, उसका मदद से उसको पहले लाइट में कन्वर्ट किया, तो लाइट सिग्नल, फिर अदर एंड में वो लाइट सिग्नल को अगेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में विद द हेल्प ऑफ फोटोडायोड और अदर डिवाइसेस कन्वर्ट किया जाता है। तो इन दिस वे वेरी फास्ट वे में, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ही ज़्यादा है, इतना फास्ट वे में विदाउट एनी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हम लोग को डेटा ट्रांसमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, but ultimately that will be converted into the electrical signal and then in audio signals or video signal. Each fiber can transmit about 2000 telephone conversation without much loss of intensity। एक साथ में एक ही वेरी थिन जो ऑप्टिकल फाइबर हेयर लगी ऑप्टिकल फाइबर एक ही फाइबर थ्रू एक ही साथ में थाउजेंड्स ऑफ हम लोग ऐसे सिग्नल भेज सकते हैं विदाउट ओवरलैपिंग और विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। ये बहुत ही फायदा है, जबकि हम लोग को जो केबल लाइन में हम लोग यूज करते हैं उसमें बहुत सारे चैनल एक साथ में हम लोग नहीं भेज सकता हूँ। इवन जो टेलीफोन लाइन जो ओल्ड टेलीफोन लाइन उसमें एक साथ में एक ही किसी के साथ कन्वर्सेशन हो सकता है 1:1, इसमें ज्यादा होगा तो नहीं हो पाता है, ओवरलैपिंग होता है, इसके बाद वो सुन लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एक ही फाइबर में बहुत सारा सिग्नल एक ही साथ में जा सकते हैं, बहुत ही फायदा है। These are used for transmitting optical signals and two-dimensional pictures भी हम भेज सकते हैं optical signal in the form of a photometric sensors। They are used for measuring the blood flow in the heart
ये हम लोग ऑटोमेटिक सेंसर के साथ हम लोग का हार्ट का जो ब्लड फ्लो कैसा हो रहा है उसको भी मेजरमेंट करते हैं। ऑप्टिकल सेंसर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड एंडोस्कोप्स फॉर विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन एटसेट्रा ऑफ द पेशेंट्स। ऐसा बहुत सारा यूज है, तो हम 2-4 को मेन यूज के बारे में बात किए हैं। तो हम लोग और एक एप्लीकेशन आज पढ़ेंगे। उसके बाद भी सेवरल एप्लीकेशंस है, सेवरल फेनोमेना है, लेकिन और ये एप्लीकेशंस आज हम क्लास में पढ़ेंगे। एक प्रिज्म होता है जिसका नाम है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म होता है जिसमें एक प्रिज्म एंगल होता है 90 डिग्री। आइसोसेलेस में राइट एंगल प्रिज्म बोला जाता है, तो आइसोसेलेस के लिए बाकी दोनों एंगल 45 डिग्री होता है। ऐसा स्पेशल जो प्रिज्म बनाया जाता है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, उसको नाम है, हम लोग यूज करते हैं फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, इसलिए हम लोग इसको नाम भी बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। Whenever a ray falls normally on any face of a such prism, it is incident on the inside face at 45 degree, and that is at an angle greater than the critical angle of glass about 42 degree. Hence, this ray is always totally internally reflected. तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन है इसमें फिलअप हो जाता है। देखा जाए क्या बात है इसमें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक फिगर डायग्राम आप देख लीजिए, यहाँ से एक जो नॉर्मल इंसिडेंस ए बी एनी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से लाइट जा रहा है, इन दिस वे इसको प्लेस किया गया, चाहे प्लेस किया जाएगा, दैट इज इंसिडेंट normal incident at the surface P here, that means one shortest surface. There are two short surface and equal in length, and another hypotenuse surface, long surface. This is short surface in this way set किया जाता है जिसके साथ वो initial that incident हुआ, that is perpendicular, that is normal incidence. Therefore it will passes from this rare to denser medium without any deviations, without any reflection. Now this angle is 45 degree, therefore this angle is also 45 degree because normal incidence it is 90 degree. Therefore here the angle of incidence also the 45 degree. And this angle of incidence 45 degree, it is more than the critical angle. The critical angle of glass is about 42 degree. Therefore when it incident here with more angle greater than the critical angle 42 degree, the angle of incidence here 45 degree, therefore it totally internally reflect back. Angle of reflection also 45 degree. It is angle of incidence 45, angle of reflection 45, then it is 90 degree, therefore it will incident at the PQ interface of the denser to rarer medium. Normal incidence, angle of incidence 0, therefore it will pass without any deviation. मतलब यहाँ जैसे सीधा निकल गया, नॉर्मल इंसिडेंस था, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हुआ है, दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। फिर यहाँ 45 आया है, फिर नॉर्मल इंसिडेंस बाहर निकल गया। सिमिलरली बी पॉइंट से कोई लाइट यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस सीधा निकल गया, and then incident here, and after that it will reflected back, total interference taken place because angle of incidence is 45 degree more than 42 डिग्री, तो यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस सीधा निकल गया। तो हम लोग देख रहा हूँ इसमें जो 90 डिग्री डेविएशन हुआ है, और इसमें जो ए बी जो इमेज था हम लोग कैसा देख रहा हूँ, इसमें टोटल लाइट का 90 डिग्री रिफ्लेक्शन हो रहा है। जस्ट लाइक जैसे यहाँ पर अगर कोई प्लेन मिरर हम रखते हैं इन प्लेस ऑफ दिस interface, if you place here in place of the RQ that is a plane mirror, you will observe the same type of situation आपको मिलेगा देखने के लिए। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं बेसिकली, इसमें पेरिस्कोप में हम यूज करते हैं, प्रिज्म पेरिस्कोप में यहाँ एज ए रिफ्लेक्टर हम लोग यूज करते हैं, दो हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें फायदा क्या होता है ना, प्रिज्म पेरिस्कोप में देयर इज नो पॉलिश्ड सरफेस, कोई मिरर नहीं है। मिरर होने से क्या होता है ना, जो पॉलिश है फॉर द लॉन्ग टर्म धीरे धीरे वो खराब होने लगता है, बहुत ज्यादा लॉन्जिविटी नहीं होता। लेकिन इसमें कोई पॉलिश सरफेस नहीं है, इसमें खराब होने वाला कुछ भी नहीं है। तो इसमें मतलब ईयर्स आफ्टर ईयर्स एज ए मतलब न्यू ये अपना परफॉर्मेंस देते जाएगा, इसमें कोई खराबी नहीं होता। इसलिए हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं इसे प्रिज्म पेरिस्कोप। जो पेरिस्कोप हम लोग यूज करते हैं, कोई सामने कोई ऑब्स्टेकल है तो उसको उधर देखना है तो हम लोग पेरिस्कोप यूज करते हैं। बहुत एंशिएंट टाइम से इसके यूज होते आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर कोई इमेज है जो उसको हम इन्वर्टेड है, उसको इरेक्ट इमेज देखना है, तो इरेक्ट है तो इन्वर्टेड इमेज देखना है, तो ऐसे टाइप हम सिचुएशन में लेते हैं। ऐसा टाइप मान लीजिए ये भी एक ऑब्जेक्ट इधर आया है, फिर रिफ्लेक्ट हुआ है, यहाँ भी यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हुआ है टुवर्ड द नॉर्मल हुआ है, लेकिन ये जो सरफेस में हो रहा है टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसके अंदर में हो रहा है, फिर यहाँ पर बाहर तरफ जा रहा है, बी पॉइंट से भी एक लाइट आया, यहाँ टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर बाहर निकल गया। तो हम लोग देख रहा हूँ जो इरेक्ट इमेज था
और वो है गया उसका इन्वर्टेड इमेज हो गया है। लाइट एंटर्स एट द वन शॉर्टेस्ट सरफेस एट एन एंगल, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज टोटली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द hypotenuse face and then reflected out of the other shortest face to become parallel to the incident beam. इन दिस वे सेट किया जाता है, इसको रखा जाता है, जो ऑब्जेक्ट जो आ रहा है पैरेलल टू द बेस से लाइट आना चाहिए, तो उसका भी पैरेलल निकल जाता है उसके साथ। तो इसमें कोई डेविएशन नहीं हो रहा है। इनिशियली जिधर डायरेक्शन था लाइट का फाइनल डायरेक्शन सेम है, लेकिन क्या हो गया ना, उसका जो इमेज था वो दैट विल बी इन्वर्टेड, मतलब कोई इन्वर्टेड इमेज को हम लोग इरेक्ट देखने चाहते हैं तो भी हम लोग इसको यूज करते हैं। सच प्रिज्म्स आर कॉल्ड द इरेक्टिंग प्रिज्म एंड आर यूज्ड इन बाइनोकुलर्स एंड प्रोजेक्शन लैंटर्न्स। बाइनोकुलर में स्पेशली हम लोग यूज करते हैं, जो इनिशियल इमेज होता है, इन्वर्टेड इमेज होता है, रियल इमेज होता है, उसको हम लोग फिर डायरेक्ट इमेज देखने चाहते थे, बीच में ऐसे एक प्रिज्म रख दिया था इन दिस वे, उसको सेट किया था पहले से ट्यूब के अंदर में, सो दैट वी कैन ऑब्जर्व द इसमें इरेक्ट इमेज, इन्वर्टेड इमेज का। इन्वर्टेड होगा इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा तो इन्वर्टेड इसमें हो रहा है। नेक्स्ट आर एक यूज हम लोग जनरली करते हैं दिस टाइप ऑफ, इसमें 180 डिग्री में डेविएशन होता है। जैसे देखिए यहाँ जो लॉन्गर सरफेस होता है उसके साथ इसको हम एज ए फास्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज करते हैं। हाइपोटेन्यूस सरफेस जो है, इसमें जो नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है विदाउट एनी bending, without any reflection, it passes from the rarer to denser medium. Here again this angle of incidence is 45 degree, therefore it is reflected back with 45 degree angle, फिर यहाँ again 45 डिग्री, तो इसमें रिटर्न हो गया है। तो ये से रे इधर से निकल गया, पीछे जो है इधर से निकल गया। तो ये जो हम लोग देखते हैं, तो इसको ये भी ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग इन दिस वे लाइट को बेंड कर सकता हूँ। जो इरेक्ट है तो उसको इन्वर्टेड, इन्वर्टेड को इरेक्ट बना सकता हूँ, 180 डिग्री में घुमा सकता हूँ। इस तरह प्रिज्म का भी यूज हम लोग करते हैं। इस टाइप प्रिज्म का स्पेशल नाम दिया जाता है, इसका नाम हो तो पोरो प्रिज्म बोलते हैं इसका टाइप। द फाइनल बीम इमेजेस थ्रू द हाइपोटेन्यूस फेस पैरेलल टू द इंसिडेंट बीम, द डेविएशन इज 180 डिग्री, सच ए प्रिज्म इज कॉल्ड पोरो प्रिज्म। तो ये दो हम लोग एप्लीकेशन आज हम लोग किए हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, एक ऑप्टिकल फाइबर, अनदर इज द टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। इसके अलावा भी कुछ नेचुरल फिनोमेना होता है, जैसे आपका मतलब सनराइज से पहले हम लोग सन को कैसे देखते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन चलते होता है। चाहे कोई क्रैक है मान लीजिए वहाँ चमकता रहता है, चाहे पेपर वेट के अंदर में कोई एयर बबल है तो भी चमकते रहता है, क्यों ना उसका वहाँ पर जाकर के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ऐसे सेवरल एग्जांपल्स डेली लाइफ में आप देखोगे, आप ढूंढोगे, कोशिश करोगे कहाँ कहाँ मिलता है। ऐसा हम दो एग्जांपल किए हैं और आज एक क्लास इतना तक ही है। अभी हम इसको स्टॉप करेंगे, कल एक न्यू लेसन से हम लोग परिचित होंगे।